नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के वार्ड 5 में पानी की शदीद किल्लत के मसले पर आवाम ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया और बोर्ड की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन एहतजाजों में खवातीन की बड़ी तादाद थी। सामाजिक कारकुन सतीश गुप्ता ने कहा कि इस इलाके में लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुकामी MLA साइना से नुमाइंदगी भी की गई, लेकिन अब तक उसका कोई हल नहीं निकला। चुनाचे वो बोर्ड के दफ्तर और MLA के घर पर अनकरीब धरना देंगे। మరి ఇచ్చినా కానీ అప్పు చేస్తే తెల్లారి తెచ్చి ఇచ్చినాము. ఇచ్చినప్పుడు బిల్లు క్లియర్ చేసినాక కూడా నువ్వు 10,000 బిల్లు ఎట్లేస్తావు? మాకు లేకపోతే 450 రూపాయలు బిల్లు మాకు నీళ్ళ చక్కరన్నా మేము ఎందుకు బిల్లు కడతాం? మాకేం అవసరం? కట్టమేమో అసలు అందరం కలిసి పోదా కంటోన్మెంట్ పోయి మాట్లాడదాం. ఏ లీడర్ అవసరం లేదు, మనం పోయి సార్తో మాట్లాడడం చేసుకున్నాం. తక్కువ అంటున్నాడు. మరి మళ్ళీ అమౌంట్ ఇంత ఖాళీ చూపిరమ్మా. ఏదన్నా ఇక్కడ సతీష్ కూడా ఆయన సతీష్ అన్న కాదు ఇప్పుడు ఉన్నదే మాట్లాడదాము. మనకి శత్రువులు కాదు. 4 రోజులు ఒకసారి వస్తుంది, అది కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. 45 నిమిషాలు వస్తే ఎవరు సరిపోతుంది. అది మాకు అదే 2 days ఒకసారి 1.5 days అందరికి సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇది పిల్లలకు ఆ తర్వాత వాడు వచ్చి ఇంటి ముంగంటే బిల్లు కట్టండి 4,000 మేము మెడికల్ కట్టాలా? ఇప్పుడు 4,000 కట్టగలుగుతామా? కట్టలేము. మరి అసలు ఇచ్చినా కానీ అప్పు చేస్తే తెల్లారి తెచ్చి ఇచ్చినాము. ఇచ్చినప్పుడు బిల్లు క్లియర్ చేసినాక కూడా నువ్వు 10,000 బిల్లు ఎట్లేస్తావు? మాకు లేకపోతే 450 రూపాయలు బిల్లు మాకు నీళ్ళ చక్కరన్నా మేము ఎందుకు బిల్లు కడతాం? మాకేం అవసరం? కట్టమేమో అసలు అందరికి వచ్చినాయి. అందరం కలిసి పోదా కంటోన్మెంట్ పోయి మాట్లాడదాం. ఏ లీడర్ అవసరం లేదు, మనం పోయి సార్తో మాట్లాడడం చేసుకున్నాం. తక్కువ అంటున్నాడు. మరి ఫటాఫట్ చేసేయాలి. रामगोपालपेट पुलिस ने मोबाइल फोन छीन लेने वाली एक टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से एक 2 व्हीलर और एक सेलफोन बरामद किया गया। इंस्पेक्टर रामगोपालपेट CH बाबू ने मीडिया को बताया कि महेश और उसके 2 साथियों को जो अपने शौक को पूरा करने के लिए छीना छपटी की वारदातों में मुलविस थे, शुबे की हालत में पकड़ा और पूछताछ के दौरान उन्होंने सारा गुल खोल दिया। 5వ తారీఖు నైట్ అంటే 12 గంటల 12 నిమిషాలు తెల్లారితే మనకి 6వ తారీఖు వస్తుంది. ఆ రోజు మన దగ్గర సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్ అఫెన్స్ అయింది. దీంట్లో రమణ్ చంద్ అని చెప్పి పిల్లాడు ప్యారడైజ్లో వెయిటర్గా పనిచేస్తాడు. 12 గంటలకు పనిచేసిన తర్వాత వీళ్ళ రూమ్స్ వచ్చేసి ఆ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎదురుగా రూమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి. ఆ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇద్దరితో కలిసి ఆ ఫుట్పాత్ మీద కూర్చొని వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేస్తున్నాడు. ఆ టైంలో ఈ అక్యూజ్డ్ ముగ్గురు, వీడు ఉడతల ఉమా మహేష్ అలియాస్ తీట మహేష్, ఇంకొకడు సురసిత్ కిరణ్ అలియాస్ సాయి కిరణ్, ఇంకొకడు అల్వాల్ పవన్, వీళ్ళు ముగ్గురు బన్సిలాల్పేట మన గాంధీనగర్ లిమిట్స్లో ఉంటారు వీళ్ళు. అయితే వీళ్ళు ముగ్గురు, వీళ్ళలో మహేష్ అన్నాడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అఫెండర్ వీడు. గాంధీనగర్ తర్వాత ముషిరాబాదు గోపాలపురం లిమిట్స్లో ఇంతకుముందు అఫెన్స్ దొంగతనం కేసులో పోయినాడు, జైలు కూడా పోయినాడు వీడు.
వీడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని అడిగి ఒక బైక్ తీసుకొని దొంగతనం చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేశాడు. వాళ్ళకి ఇంకా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని ఆ బైక్ మీద వచ్చాడు. బైక్ మీద రాంగ్ రూట్లో వస్తూ ఈ పిల్లోడు ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే గమనించి ఆమె డిసైడ్ చేసుకున్నారు దీన్ని స్నాచింగ్ చేద్దామని చెప్పి. ప్యారడైజ్ సర్కిల్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని రిటర్న్ వచ్చి ఆ పిల్లోడి దగ్గర ఫోన్ తీసుకునేసి బన్సిలాట్ పెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. మనకున్న అవైలబుల్ ఉన్న సీసీ కెమెరాస్ మేము ఒక 3 టీమ్స్ మా క్రైమ్ టీమ్స్ ఒక 3 ఫామ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి బన్సిలాల్పేట వరకు మనము ట్రాక్ చేసినాము. ఆ తర్వాత మనకి టవర్ లొకేషన్ ఒకటి తీసుకున్నాము ఆ సెల్ ఫోన్ది. ఈ రెండు కంపేర్ చేసి ఆ బైక్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బైక్ ద్వారా అక్యూజ్ని పట్టుకొని ఆ సెల్ ఫోను ఆ క్రైమ్కి ఉపయోగించిన ఆ బైక్ రెండు రికవర్ చేసాం ఈరోజు. जेएचएमसी के कुतुबुल्लाहपुर सर्कल में शराब की दुकान के मालिक को सड़क पर कचरा फेंकने और दुकान को साफ सुथरा न रखने पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया। बल्दी अमले ने आज इलाके में चेकिंग के दौरान पाया कि दुकान के मालिक ने शराब के डब्बे सड़क पर यूं ही फेंक दिए थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिटी पुलिस के आसिफ नगर डिवीजन के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों गोलकुंडा, लंगर हाउस, टप्पा चबूतरा, हुमायूं नगर और आसिफ नगर के हुदूद में मुकीम बैरूनी शहरियों को उनके बारे में मालूमात हासिल करने की गर्ज से मल्लेपल्ली में वाक़ एक शादी खाने को तलब किया गया, जिसके दौरान उनके पासपोर्ट, वीज़ा और उसकी मुद्दत के बारे में जानकारी हासिल की गई। इन बैरूनी शहरियों में सूडानी, नाइजीरियन और सोमाली बाशिंदे शामिल हैं। कुछ अपने अरकान खानदान के साथ हैदराबाद के इस मगरबी इलाके में काफी अरसे से रह रहे हैं। पुलिस के जराये ने बताया कि वीजा की मुद्दत के बाद भी मुल्क में रहने वालों के खिलाफ पुलिस डिपोर्टेशन की कार्रवाई करेगी। कर्नाटक में चलते सियासी बहरान के दौरान साबिक वजीर रोशन बेग ने आज असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने 3 हफ्ते कबल रोशन बेग को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में मुअत्तल कर दिया था। रोशन बेग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो ना तो बंबई गए हैं और ना ही गोवा, बल्कि वो बेंगलुरु में ही है। पार्टी की तरफ से उन्हें नजरअंदाज किए जाने पर वो कांग्रेस से नाराज हैं और शिवाजी नगर
असेंबली की अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। रोशन बेग के करीबी जराये के मुताबिक वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। इस बात का इशारा उनके इस बयान से भी मिलता है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई अछूत जमात नहीं है, वो भी मुल्क की एक कौमी सियासी जमात है और दस्तूर को तस्लीम करती है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि रोशन बेग 7 मरतबा असेंबली के रुकन रहे और जनता दल एस और कांग्रेस की हुकूमतों में 4 बार वजीर भी रह चुके हैं, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए वाले AMI स्कैम में उनका नाम आने के बाद काफी बदनाम हो गए। इस स्कैम में हजारों लोग करोड़ों रुपए की अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। Decision is basically I am hurt. The way my party has treated me, the way they have suspended me. In the recent elections, all those leaders, my legislative friends who had worked against the party openly, no action was taken against them. And I was suspended just because I spoke the truth, the bitter truth. The state leadership failed managing the entire election campaign. The other thing is that now, as of now, I am not going to Bombay, I am not going to Goa, I am not anywhere. I am here in Bangalore city with my family. I am as a chairman of the Karnataka State Hajj Committee. I am busy in Hajj Bhavan at the Hajj terminal. Even now I am straight going to the Hajj terminal because we have 2 flights tonight and I have another 4 flights tomorrow, Hajj terminal flight from here to Medina. So I am busy with this. I have consulted my constituency people. Most of the workers I have consulted workers. I am in the process of consulting my religious leaders also. Most of them agree with my stand. I am going to resign from party. You are going to resign Congress, sir? Yes, I am going to resign from my MLA-ship. My iman नहीं बदल रहा. It is not the change of faith. BJP is also a political party. वो भी एक राजनीतिक दल है, वो भी एक पार्टी है. क्या उसमें क्या बुरी बात है? अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कर्नाटक में जारी सियासी उथल पथल का मसला आज लोकसभा में दूसरे दिन भी जेर बहस आया। कांग्रेस के अरकान ने अपने कायद अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में यह मसला उठाते हुए खूब हंगामा किया। अरकान ने बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए। हुक्मरान बेंचों की तरफ से भी जवाबी नारे लगाए गए, जिससे ऐवान की कार्रवाई शोरगुल की नजर हो गई। सूरत हाल को बेकाबू होता देखकर स्पीकर ओलाराम ने अरकान को खामोश होने का मशवरा दिया और कहा कि वो ऐवान में नज्म व ज़ब्त बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि वो हड़बंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐवान सबका है और सबको अपनी बात करने का मौका दिया जाना चाहिए, बल्कि वो सेहतमंद बहस के लिए अपनी हुदूद से भी आगे जा सकते हैं। अपोजिशन का कहना था कि बरसकता जमात के अरकान हैकलिंग के जरिए उन्हें दबाना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अरकान असेंबली की दल बदली और खरीदारी के लिए बीजेपी को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए इस सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मसले पर अपना जवाब देने के लिए जो ही उठ खड़े हुए, कांग्रेस के तमाम अरकान ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। अन्य अध्यक्ष महोदय, आप मुझे देश के बड़े पैमाने पर नकली दूध एवं मिलावटी दूध बिक्री जैसे अति और लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए इजाजत प्रदान की। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध ऐसी दैनिक उपयोगी वस्तु है कि जिसका हम सभी स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए गोकुल मिशन करके देशवासियों को शुद्ध दूध उपलब्ध करा रही है और बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग का भी बढ़ावा दे रही है। लेकिन सर,
नकली मिलावटी दूध को कारोबार को रोकना भी इतना ही जरूर है। थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था वो सरकार भेजी गई एक एडवाइजरी में कहा गया कि यदि भारत में मिलावटी दूध और उसको उत्पादों को तत्काल रोका न गए तो साल 2025 तक भारत की 87% जनसंख्या कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की गिरफ्त में हो जाएगी। आज सर मिलावटी दूध यूरिया और खतरनाक रसायनों से वही मिलावटी दूध बनता है और देश के बड़े बड़े शहरों और डेयरी उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोग ये कारोबार में शामिल है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि ऐसे बदमाशों के लिए सरकार कड़े के कड़े कानून का प्रावधान करे, फूड सेफ्टी एक्ट को सख्ताई से लागू करने का आदेश जारी करे। धन्यवाद सर। श्री प्रदीप कुमार चौधरी, आप प्लीज। आपने मुझे शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपना विषय रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कैराना लोकसभा क्षेत्र से मैं आया हूँ। शामली जनपद हमारा केंद्रीय विद्यालय से वंचित है और सरकार की योजना भी है कि जनपद स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो और वहाँ के बच्चे आसपास के जनपदों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में अपना प्रवेश लेने के इच्छुक होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि जनपद शामली में, कैराना क्षेत्र के जनपद शामली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द कराए जाने की मैं मांग करता हूं। आपसे अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आप अपनी सीट पे जाओ, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। प्लीज अध्यक्ष जी। कागज था ना। माननीय सदस्यों, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज माननीय, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य, आपको जवाब देने के लिए अधिकार नहीं किया। प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए, बढ़िया। माननीय आप अपनी सीट, टेक और सीट। माननीय सदस्यों, आप द्वारा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। मैंने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव आपका स्वीकृत किया है। मैं कभी भी सदन में हर माननीय सदस्यों को आउट ऑफ टर्न की और के बाद भी बोलने का मौका दूं। जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इस सदन की गरिमा को हमें विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए। सदन सबका है, आप सबका सदन है। इस सदन को आप नारेबाजी और तख्तियों में मत ले जाओ। मेरा आपसे आग्रह व्यक्तिगत रूप से, इस सदन के अंदर आप जितना वाद विवाद संवाद करना कीजिए। मैं सत्ता पक्ष का हूं, उसका जवाब देने को जवाब दीजिए, लेकिन इस सदन के अंदर तख्तियां और नारेबाजी, माननीय सदस्य अगर सब सहमत हो तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मैं आपके मान्य नेता को, आप फिर बैठ जाइए। मैं जितने विषय पर आप उठाना चाहेंगे, हर विषय पर आउट ऑफ टर्न भी मैं आपको अलाउ करूंगा। आप विषय उठाइए, लेकिन मेरा आग्रह है कि दुनिया इस सदन को देखती है। हम इस सदन की गरिमा को बनाने का, आपका सदन है, आपके सदन की गरिमा आप बना कर, आप तख्तियां चौराहे के लाएंगे तो नगर निगम नगर परिषद जैसा सदन को मत बनाइए। सर बोलिए, आप अजीरन जी जितना बोलना बोलिए ना। दानिश अली जी, आपको ही मौका दे दूंगा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सर, आपको पीड़ा मैं समझता हूं,
और इसलिए शुरू की दिन से, पहले दिन से आज तक आपने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से बराबर हम सहयोग करते रहे। आज सर हाउस का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, हाउस का प्रोडक्टिविटी जब बढ़ रहे हैं तो हमारा योगदान के बिना हाउस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकते। ये आपका बिना नहीं, ये सबका नहीं, मतलब हम इसलिए कहते हैं कि हम विपक्ष तो मैं एक हिस्सा हूं इसलिए कह रहा हूं। इसका मतलब हमारा मकसद बड़ा साफ है, सदन को चलाना, यहाँ बहस करना, यहाँ डायलॉग करना, डिस्प्यूट करना हमारा काम है, डिसीजन लेना उनका काम है। हम मुद्दा उठाएंगे, डिसीजन लेना उनका काम है। वो सरकार में है, वो पोजीशन में है, हम ओपोजिशन में है, तो हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, सरकार का फर्ज निभाए, यही हमारा उनसे उम्मीद है, ज्यादा नहीं। तो सर माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, न बैठे बैठे बोले न बड़े। जब मैंने माननीय अधीर रंजन जी को कहा तो अधीर रंजन जी बोलेंगे, सुन नहीं रहे ये लोग, आप ऐसा मत कीजिए। बोले अधीर रंजन सर, हमारा ये सदन में एक बड़ा कद्दावर नेता, जी वरिष्ठ नेता जिनको मैं बड़ा सराहना करते हैं, अरुण जेटली साहब, वो कहा करते थे कि डिसरप्शन इज ऑल्सो लेजिटिमेट वेपन फॉर डेमोक्रेसी। तो क्या करें सर, हम भी तो हमारा वरिष्ठ नेता से सीखे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप वाकिफ है कि कर्नाटक में क्या हालात हो रहे हैं। मैं सिर्फ तो दो मुद्दा, सर कर्नाटक की नहीं, ये शिकार की राजनीति को बंद करना चाहिए, ये पोचिंग पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। आज कर्नाटक, काल मध्य प्रदेश, इस तरीके की इलेक्टेड गवर्नमेंट एक के बाद एक को अगर तोड़ा जाए, अगर इनको तोड़ा जाए, डिसमेंटल किया जाए पैसा के लालच में और मासिल से, ये सही नहीं है सर। राजभवन से निकलता है विधायक, उनके लिए गाड़ी खड़ा है, एयरपोर्ट जाएंगे, हवाई जहाज खड़ी है, होटल, आलीशान होटल सब तैयार है, और ये सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कहते हैं हम अभी कर्नाटक ले रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश लेंगे। ये शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये पोचिंग पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए, इसी के लिए हम सदन में आए हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी का नीति और नियत पे हिंदुस्तान के आम लोगों की बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सरकार को, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा सत्तारूढ़ पार्टी को, इस तरीके के लोकतंत्र को आप किसी हालत में इसको आप ढंग से दहना कीजिए, लोकतंत्र को बचा के रखिए, और ये शिकार की राजनीति बंद होना चाहिए। पोचिंग पॉलिटिक्स शुड बी स्टॉप। सदन के उपनेता रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए जो विषय इसी सत्र में हाउस में उठाया गया है, पुनः आपने उन्हें बोलने की इजाजत दी है, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। यह सच है, कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है यह कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को, अपने हाउस को यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता, यही मैं कहना चाहता हूं। श्री मुकेश राजपूत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का एक ज्वलंत विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। अब शिक्षक पढ़ाना चाहता है, बच्चे पढ़ना भी चाहते, अभिभावक भी बड़े इंडिया में अपना सहयोग कर रहे हैं। महोदय, देश में शिक्षा जगत में अभूतपूर्व सुधार होने के बावजूद भी अभी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कॉलेजों में हर वर्ष बच्चों के अभिभावकों से बिल्डिंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली तथा 10 माह की शिक्षा के बदले 12 माह की फीस वसूली जाती है, तथा सिलेबस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पुस्तकों के नाम पर हजारों रुपए का चूना बच्चों के अभिभावकों पर लगाया जाता है महोदय, जिससे अभिभावकों को पढ़ाने में पसीना छूट जाता है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2018 के बीच स्कूल की फीस 150% का इजाफा हुआ है महोदय। स्कूलों में सालाना खर्च 55,000 रुपए से बढ़ाकर
लगभग 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। स्कूलों की ज्यादा फीस अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गई है। स्कूलों में नर्सरी से प्राइमरी ज्यादा फीस वसूली जा रही है, कभी डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग जूता कपड़ों के नाम पर मनमाने ढंग से धन की उगाही की जा रही है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो विद्यालय संचालित है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में अतिरिक्त व्यय बचाया जा सके, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिला सके। महोदय, एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में अध्यापक हैं उनमें ही उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हर आदमी के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सके। धन्यवाद अध्यक्ष। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन को मस्जिदों में दाखिले की इजाज़त देने और हिजाब के तरीके को बर्खास्त करने से मुताल्लिक हिंदू महासभा की केरला यूनिट के सदर की दरखास्त को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि तुमको इससे क्या लेना देना है और तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्वामी डी साई स्वरूपनाथ की दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। हिंदू महासभा को केरला हाईकोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उस अदालत ने भी उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि मुस्लिम खवातीन का मसला है, इसके बारे में उनको ही कुछ कहने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्ती शोहरत के लिए ऐसी दरखास्तें दायर करते हुए अदलिया का वक्त ज़ाय करने वालों पर अपनी नापसंदगी का इजहार किया। कर्नाटक में जनता दल और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत को आज उस वक्त थोड़ी सी राहत मिल गई जब स्पीकर KR रमेश कुमार ने ऐलान किया कि कई अरकान असेंबली के इस्तीफे सही फॉर्मेट में नहीं है। उन्होंने सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 के मुंजमला कम से कम 8 अरकान असेंबली के मकतूब इस्तीफे कायदे के मुताबिक नहीं पाए गए। उन्हें यह मालूम करना होगा कि आया इन अरकान ने किसी दबाव या लालच के तहत इस्तीफा तो नहीं दिया। उन्हें इन मुस्तफ़ीशुदा अरकान असेंबली से इस सिलसिले में शख्सी तौर पर बातचीत भी करनी होगी। 2000 अरकान असेंबली की हुकूमत से 23 से दस्तबरदारी से मुतालिक सवाल पर स्पीकर ने कहा कि ये उनकी मर्जी का मामला है। रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने गवर्नर को मुत्तला किया कि वो दस्तूर के पाबंद हैं और हर काम दस्तूर के मुताबिक ही करेंगे। उन्होंने गवर्नर को यह भी बता दिया कि किसी भी नाराज रुकन असेंबली ने उनसे अब तक मुलाकात नहीं की। I am not required at all. If everything can happen through postal correspondence, yes. I am not required at all. Sir, that lies in your very question. Sir, the Congress. I consider it. We got the majority because we are more than Congress JDS MLAs. We are 107 almost, and the Congress and JDS government falls to 103. I think governor can take the decision to call BJP to form the government. We are nothing to do with the Congress's infight, and because of Congress leaders' behavior, because of Kumaraswamy's behavior, the leader like Ramalinga Reddy, S.T. Somashekar, Bhairati Basavaraj, the close aide of Siddharamaiah, they are unhappy because of their behavior, and we are nothing, BJP nothing to do with all this drama, and we are watching and we are seeing that what will happen in the future. That's why B.S. Yediyurappa ji is nothing to do with this all this turmoil which is going on in Karnataka, and this is a false allegation.
BJP is keeping quiet. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।